Hello guys, today I will teach you module first of mathematics third topic Laplace transform. First of all, what is Laplace transform? It means definition. Let the function ft for all t is greater than or equal to 0 and kernel of Laplace transform kst is defined by kst is equal to 0 where t is less than 0 and e raised the power minus st where t is greater than or equal to 0. Then Laplace ft is equal to fs is equal to integral 0 to infinite e raised the power minus st ft dt. This is equation first. The equation first is known as Laplace transform and it is denoted by Laplace transform of ft or EFS. हम कोई फंक्शन लेते हैं ft जो डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कर्नल ऑफ Laplace transform which is denoted by kst is also defined by kst is equal to 0 when t is less than 0 and kst is equal to e raised the power minus st where t is greater than or equal to 0. Then Laplace transform of ft which is equal to fs. Fs is also known as Laplace transform of ft equal to integral 0 to infinite e raised the power minus st ft dt. This equation is said to be Laplace transform of given function ft and which is denoted by Laplace ft or fs. बता ले एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग इंटीग्रल करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनका यूज करते हैं, उसके इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं, बट जब हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो प्रोसेस लेंदी हो जाता है. उस डिफरेंस को, उस डिस्टेंस को कम करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं कि ये सर्टेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिनिमाइज कर देता है. ना लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. This property is the most important property of Laplace transform. Theorem है, if Laplace transform of ft is equal to fs
and Laplace transform of gt is equal to gs, then Laplace transform of a of t plus b gt is equal to a Laplace transform of f t plus b Laplace transform of gt. This is also equal to a fs and b gs. प्रूफ। तो जब भी हमको प्रूफ करना होगा, जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका जो फार्मूला है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला यूज करते हैं। बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a of t plus b gt is equal to integral 0 to infinite e raised to the power minus est a f t plus b gt dt. This is equal to a 0 to infinite e raised to the power minus st f t dt plus b 0 to infinite e raised to the power minus st gt dt. तो by definition of Laplace transform, this integral is known also written as Laplace transform of ft. तो a Laplace transform of ft plus b, this is also written as Laplace transform of gt, and by the problem this can be also written as a fs plus b gs. इस फॉर्मूले का यूज कर करके प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड सर्टेन फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का हम इंटीग्रल, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, तो ये लेंदी हो जाता है, जिसमें आइलेट रूल लगता है। लेकिन लाप्लास का यूज करने से ये कम से कम समय में और कम से कम स्टेप में हो जाता है। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानना जरूरी है। और खासकर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए उनके कैलकुलेशन के लिए, उनके मिनिमाइजेशन के लिए हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना जरूरी है। तो आइए हम लोग कुछ फंक्शन लें जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। Laplace transform of some function। तो सबसे पहले हम if ft is equal to t raised to the power n, तो by definition Laplace transform of t raised to the power n is equal to integral 0 to infinite e raised to the power minus st t raised to the power n dt। अब हमको आइलेट रूल की जरूरत पड़ेगी। आइलेट रूल का यूज करें और हम आगे बढ़ लें। आप लोग जानते हैं, जब हम आइलेट रूल यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो यहाँ आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्रिक है, तो बाय आइलेट रूल इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो देखिए टी रेज़ दी पावर n
e raised the power minus st upon minus s minus integral 0 to infinite e raised the n t raised the power n minus 1 e raised the power minus st upon minus s dt, ये आ जाएगा। तो अब यहां देखिए ये प्रॉब्लम लेंदी होने लगा। अब यहां बाई सब्स्टिट्यूशन देख लें, क्या सब्स्टिट्यूशन से इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां आप देखें तो इसको हमको बहुत स्टेप में लेके जाना होगा, इसलिए हम इससे बचते हैं और हम जो हमारे पास गामा फंक्शन है उसका हम यूज करते हैं, जिससे ये चीज मिनिमाइज हो जाता है। तो मिनिमाइज करने के लिए पुटिंग st इज इक्वल टू u, तो dt इज इक्वल टू du बाई s आ जाएगा फॉर लिमिट्स when t is equal to 0, तो u is equal to 0 and t is equal to infinite, u is equal to infinite. So Laplace transform of t raised the power n becomes 0 to infinite e raised the power minus u, और यहाँ से t की वैल्यू होगा तो u अपॉन s raised the power n du by s, तो यहां से देखें 1 अपॉन एस रेज़ दी पावर n प्लस 1, ये कांस्टेंट है, e रेज़ दी पावर माइनस u रेज़ दी पावर n du। अब ये गामा फंक्शन के डिफिनीशन से इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एस रेज़ दी पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1, यहां लिख लें बाई definition of गामा फंक्शन। तो इस तरह से देखें कि हमको एक फार्मूला मिल गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन एस रेज़ दी पावर n प्लस 1। अब इस फार्मूले का अगर हम यूज करें तो बहुत सारे रिजल्ट हमको मिल जाएंगे। पहला है if t is equal to 0 then ft is equal to t raised the power 0 is equal to 1 by the formula, इनके सब फार्मूले हैं ये। तो यहां से देखें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन s रेज़ दी पावर n 0 प्लस 1 गामा n प्लस 1 है, तो यहां पर 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं 1, ये गामा 1 की वैल्यू 1 होती है s, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस। b है अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर निगेटिव होगा तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा तो फार्मूला अप्लीकेबल होगा इफ n be a positive integer then gamma n plus 1 is equal to factorial n, so Laplace transform t raised the power n is equal to factorial n upon s raised the power n plus 1। तो एक दूसरा फार्मूला भी हमको मिल गया कि Laplace transform of t raised the power n is equal to गामा n अपॉन s रेज़ दी पावर n प्लस 1। अब ऐसे ही n इज इक्वल टू 1 ले लें, फिर देखें कि फार्मूला क्या आ रहा है। सी है इसका पार्ट, इफ n इज इक्वल टू 1 देन
एफ टी इज इक्वल टू टी रेज दी पावर 1, दिस इज टी, बाय definition लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू गामा 1। यहां से देखे n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, 1 क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, s रेज दी पावर 1 प्लस 1, गामा 1 की वैल्यू 1, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन s रेज दी पावर 2। तो इस तरह हमको 4 फार्मूले मिले। पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज दी पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज दी पावर n प्लस 1। सेकेंड, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, उस केस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज दी पावर n इज इक्वल टू गामा n फैक्टोरियल n अपॉन s रेज दी पावर n प्लस 1 होगा। और तीसरे केस में अगर हम लोग t की वैल्यू 0 ले ले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s आएगा। चौथे केस में देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, इट मींस n इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन s स्क्वायर आ जाएगी। तो इस तरह से 4 फार्मूले हमको मिल गए। फिर हम देखते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी, एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी, एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी प्लस बी। इस तरह फार्मूला डेवलप करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फार्मूलों का ही अहम रोल होता है। फार्मूले पे हम सर्टेन वैल्यू रखते जाते हैं, उन फार्मूलों का यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमको मिलते जाते हैं। तो नेक्स्ट है इफ एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी, तो बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। अब आप ये जानते हैं साइन ए टी क्या है, सर्कुलर फंक्शन है। साइन ए टी, कॉस ए टी, टैन ए टी, ये सब के सब क्या है, सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन हम किसको कहते हैं, जो सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम सर्कुलर फंक्शन कहते हैं, और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई उसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस एस टी, ई रेज दी पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी, साइन ए टी डी टी। आगे प्रोसीड करें तो यहां से देखें क्या मिल जाएगा हमको, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस एस टी। एक्सपोनेंशियल के टर्म में साइन ए टी की वैल्यू होती ई रेज दी पावर आई ए टी माइनस ई रेज दी पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i। इस फार्मूले का यूज करें, ई रेज दी पावर आई ए टी माइनस ई रेज दी पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i डी टी। तो 1 अपॉन 2i ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस एस माइनस आई ए टी डी टी माइनस 0 टू इनफाइनाइट ई रेज दी पावर माइनस एस प्लस आई ए टी डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, 1 अपॉन 2i ई रेज दी पावर माइनस एस माइनस आई ए टी अपॉन माइनस एस माइनस आई ए माइनस ई रेज दी पावर माइनस एस प्लस आई ए टी अपॉन माइनस एस प्लस आई ए 0 टू इनफाइनाइट। जैसे t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पहला वैल्यू 0 हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस आई ए। यहां करेंगे तो ये माइनस है, और जब इसको अपर लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे ये वैल्यू 0, लोअर लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन एस प्लस आई ए। लेकिन माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और फिर ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस आई ए। इनको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 2i एस प्लस आई ए माइनस एस प्लस आई ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे प्रोसीड करें तो 1 अपॉन 2i
इंटू 2IA अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला मिल गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया कि साइन AT, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखें, अगर इसमें कोई समस्या हो तो बताएं। क्या है कि हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft का डिफिनीशन यूज किया, तो 0 to ∞ e raised to the power minus st sin AT dt आ गया। साइन AT को हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में e raised to the power i AT माइनस e raised to the power माइनस i AT अपॉन 2i लिखते हैं। जब कभी आप आइलर्स थ्योरम पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां ये वैल्यू आपको मिली होगी और इनका यूज करते हैं। फिर हम इनको सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंट इंटीग्रल का रूल लगाते हैं, अपर लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं, लोअर लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं, तो वैल्यू आ जाती है 1/2i 1/s माइनस ia माइनस 1/s प्लस ia। तो 1/2i इंटू 2ia अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे आया है, यहाँ माइनस आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस वो +1 हो जाएगी। उस कंडीशन में हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT इज इक्वल टू ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हम लोग और देख लेते हैं। इफ ft इज इक्वल टू e raised to the power AT मिल जाए, तब आप क्या करोगे, तो बाई डिफिनीशन का हम यूज करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to the power AT, ये आ जाएगा 0 to ∞ e raised to the power माइनस st e raised to the power AT dt। यहां से देखें 0 to ∞ e raised to the power माइनस s माइनस AT dt। इसको हम लिख सकते हैं e raised to the power माइनस s माइनस AT अपॉन माइनस s माइनस a। लिमिट एग्जिस्ट करा दें 0 to ∞, तो 0 माइनस प्लस 1 अपॉन s माइनस a। तो हमको एक नया फॉर्मूला मिल जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to the power AT इज इक्वल टू 1/s माइनस a। इसी फॉर्मूले का यूज करें तो बी कैन राइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to the power माइनस AT इज इक्वल टू 1/s माइनस s प्लस a। तो एक नया फॉर्मूला भी डेवलप हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power AT की वैल्यू 1/s माइनस a होगी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to the power माइनस AT की वैल्यू 1/s प्लस a होगी। आगे भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ साइन की जगह हम cos AT ले लें, साइन की जगह पर हम cos AT ले लें। फिर देखें cos AT, तो बाय डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास cos AT इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e raised to the power माइनस st cos AT dt। तो बाई आइलर्स थ्योरम cos AT इज इक्वल टू e raised to the power IAT प्लस e raised to the power माइनस IAT अपॉन 2, ये होता है। इस फार्मूले का अगर हम यूज कर लें तो ये हो जाएगा 0 to ∞ e raised to the power माइनस st e raised to the power IAT प्लस e raised to the power माइनस IAT अपॉन 2 dt। 1/2 कांस्टेंट में बाहर हो गया, 0 to ∞ e raised to the power माइनस s माइनस IAT dt प्लस 0 to ∞ e raised to the power माइनस s प्लस IAT dt। अब आप चाहें तो जो अभी फार्मूला थर्ड बताया है
इसका इस्तेमाल कर लें, और या आप इंटीग्रेट करके लिमिट एग्जिस्ट कर लें। तो मैं इसी का इस्तेमाल कर लेता हूं 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/s माइनस आई ए। वन अपान एस माइनस आई ए यहां यूज करते हैं तो ये भी आ जाएगा +1/s प्लस आई ए। ये आ गया हमारा 1/2 सॉल्व कर ले तो s प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए अपान एस माइनस आई ए इंटू एस प्लस आई ए। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 2s अपान एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ रहा है? तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री से आयलर्स थ्योरम का यूज कर करके ये फार्मूला डेवलप कर रखे हैं, उस फार्मूले का हम लोग यूज किए हैं, तो ये चेंज हो गया है इस फॉर्म में। आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर करके लिमिट एग्जिस्ट करा लें, या फिर इसके जस्ट पहले जो हमने फार्मूला बताया है उस फार्मूले का यूज कर ले तो ये 1/s माइनस आई ए आ जाएगा, ये 1/s प्लस आई ए आ जाएगा। और फिर हम इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करने पे ये यस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इफ एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी प्लस बी, ये फार्मूला आ जाए तब आप कैसे करेंगे इस टाइप के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। यहां भी हम लोग डिफिनीशन का यूज करेंगे। बाय डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ए टी प्लस बी। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, वहां फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अभी हमने आपको डिफिनीशन के जस्ट बाद लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ाया है, जहां कॉस बी और ये साइन बी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फंक्शन होने के नाते यहां हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो कॉस बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी प्लस साइन बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। अभी ये दोनों फॉर्मूले आपने डेवलप कर रखा है। क्या था, ये था a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन प्लस साइन बी, ये क्या था s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला आपको डेवलप हुआ। तो आप जब आपको प्रॉब्लम्स होंगे तो इस फार्मूले का हम डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम मिले तो आप इन फार्मूलों को याद रखें और इन फार्मूलों का यूज कर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आइए प्रॉब्लम भी करते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी करते हैं जहां इस फार्मूले का हम लोग यूज कर सके। तो प्रॉब्लम है इफ एफ टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2t फाइंड
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 2t। ये हमारा प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। अब आप यहां देखें, क्या cos स्क्वायर 2t का कोई फॉर्मूला है? तो नहीं है। अब cos स्क्वायर 2t का कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला देखें, क्या cos स्क्वायर 2t को हम इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं कि जो हमारे फॉर्मूले हैं वो उस पर एप्लीकेबल हो जाए। तो आपको cos 2t का फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए सॉल्यूशन, we know that cos square t is equal to 1 by 2 1 plus cos 2t। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करें, सो cos स्क्वायर 2t is equal to 1 by 2 1 plus cos 4t। t की जगह पर 2t पुट कर देंगे तो cos स्क्वायर 2t की वैल्यू 1 by 2 1 plus cos 4t हमको मिल जाएगी। और फिर हम लाप्लास यूज कर लें, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t is equal to 1 by 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t। दिस इज इक्वल टू 1 by 2, लाप्लास 1 की वैल्यू हमने निकाला है 1/s, और लाप्लास cos 80 की वैल्यू निकाला है s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो आपके पास ये फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज इक्वल टू s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू 4 है तो इस फॉर्मूले का यहाँ यूज करें तो क्या आ जाएगा? s/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 16। सॉल्व कर लें तो 1 by 2 s स्क्वायर प्लस 16 प्लस s स्क्वायर अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 16। तो रिजल्ट आ गया हमारा 2s स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2s s स्क्वायर प्लस 16। देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उनका हम प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको लर्न होगा तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जरूरी है कि प्रॉब्लम आपको तैयार हो ताकि आप फार्मूले का सही इस्तेमाल कर सकें। अब प्रॉब्लम सर्कुलर फंक्शन पे तो हो गया, अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन की ही बात कर लें कि क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म हाइपरबोलिक फंक्शन पे एप्लीकेबल है तो उसका फॉर्मूला डेवलप करना जरूरी है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम करने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो जैसे अभी आपने सर्कुलर फंक्शन के लिए किया है वैसे हम हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी करेंगे, बट जरूरी है कि आपको जो हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफिनीशन है वो क्लियर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है इफ ft इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at, ft इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at। अब इनको सॉल्व करने के लिए बाय डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का डिफिनीशन क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft इज इक्वल टू fs इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ दी पावर माइनस st ft dt, जहां L क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है, e रेज़ दी पावर माइनस st क्या है? कर्नल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो डिफिनीशन से 0 टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ दी पावर माइनस st साइन हाइपरबोलिक at dt। अब हाइपरबोलिक का डिफिनीशन है तो बाई साइन हाइपरबोलिक at, इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखते हैं e रेज़ दी पावर at माइनस e रेज़ दी पावर माइनस at अपॉन 2। इसका हम यूज कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ दी पावर माइनस st e रेज़ दी पावर at माइनस e रेज़ दी पावर माइनस at बाई 2
dt 1/2 बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 to infinite e raised the power minus s minus a t minus dt minus 0 to infinite e raised the power minus s plus a t dt। अब चाहे आप फॉर्मूले का यूज कर लें या लिमिट एग्जिस्ट करा लें, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। e raised the power minus s minus a t अपॉन माइनस एस माइनस ए माइनस ई रेज़ दी पावर माइनस एस प्लस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए। आप इंटीग्रेट करेंगे ई रेज़ दी पावर ए टी का तो क्या आता है ई रेज़ दी पावर ए टी अपॉन ए, उस फार्मूले का यूज किए तो ये हो गया। और लिमिट हमारी 0 टू इनफाइनाइट है, इनको जब हम एडजस्ट कराएंगे तो 1/2 जैसे इनफाइनाइट रखेंगे टर्म 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म 0 हो गया, माइनस यहाँ माइनस होने को से प्लस हो जाएगा, और 0 रखेंगे ई रेज़ दी पावर 0 या किसी भी वेरिएबल टर्म का पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यह आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 0 माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए। आगे हम लोग प्रोसीड कर लें तो जाएगा 1 अपॉन 2 एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए अपॉन एस माइनस ए एस प्लस ए। ये वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 अपॉन 2 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमको एक फार्मूला मिल गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे आपने ये फार्मूला डेवलप किया है, similarly we can show that Laplace transform of cos hyperbolic at is equal to s upon s square minus a square। तो आपने देखा कि हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft की वैल्यू निकाले, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू दिस, जहां साइन हाइपरबोलिक at जो हाइपरबोलिक का डिफिनेशन है उससे हमने साइन हाइपरबोलिक at को एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूले से ब्रेक किया, और जैसे ये वैल्यू रखते हैं आगे प्रोसीड करते हैं तो इस फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और फिर हम चाहे डिफिनेशन का यूज कर लें, इंटीग्रेशन का यूज कर लें, या जो पिछला अभी फार्मूला डेवलप किया है उनका यूज कर लें, तो इनकी वैल्यू 1 अपॉन एस माइनस है और इनकी वैल्यू 1 अपॉन एस प्लस ए आ जाता है। सॉल्व करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at की वैल्यू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली बी कैन राइट cos हाइपरबोलिक at की वैल्यू s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब बहुत सारी प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इनका भी यूज हम करते हैं इनका जनरलाइजेशन के लिए कि जब हमारे प्रॉब्लम इन फार्मूलों पे खरे नहीं उतरते हैं या ये फार्मूले उसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं तब हम सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम इनका, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ दी पावर at ft इज इक्वल टू fs माइनस ए। ये हमको प्रूफ करना है कि e रेज़ दी पावर at
एफ टी की वैल्यू एफ एस माइनस ए आएगी। ठीक है, तो अब डिफिनीशन का हम लोग यूज कर ले, प्रूफ करते हैं बाय डिफिनीशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ दी पावर ए टी एफ टी is equal to integral 0 to infinite e raised the power minus st e raised the power at ft dt 0 to infinite e raised the power minus s minus at ft dt, putting s minus a is equal to p, then Laplace transform e raised the power at ft is equal to 0 to infinite e raised the power minus pt ft dt. तो by definition of Laplace transform this can be also written fp, p की वैल्यू रख दें तो fs माइनस a, तो हमको फार्मूला एक मिल गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e raised the power at ft इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए। यही हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, जिनका यूज करके हम कुछ फार्मूले भी डेवलप करते हैं, यूजफुल फार्मूले भी, और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। अब बंद कर दो यार, बड़ी गर्मी है।